Hello everyone, this is Pallavi and you are watching Indian Masterminds. Today in this special episode, we have with us IAS officer Ms. Radha Raturi. Ms. Raturi is currently the Additional Chief Secretary to CM, Home Department and Secretariat Department. Before joining the IAS, she has also served in Indian Information Service and Police Service. तो आज की बातचीत में हम उनके IAS बनने से पहले और बाद तक के सफर पे बातें करेंगे. वेलकम मैम. Thank you, Pallavi, and your team. धन्यवाद. आप पूछिए जो भी आप पूछना चाहेंगे. This came in my mind first क्योंकि obviously मैं खुद जर्नलिज्म से हूँ, तो मेरा पहला प्रश्न तो यही होने वाला था. आपने शायद सोचा भी होगा ये, because after your graduation you did your MA in public personal management and then also you also did in mass communication. So इसके बाद how did you come to think कि UPSC CSC की preparation करना. Yeah, so basically, when I was in college, did my college in Bombay, Sophia College, Bombay, and I did history honors. And we had a college magazine, and like for 3 years during my college days, I was on the editorial board, and for 2 years I was the editor of the college magazine. So I really liked writing and taking interviews and editing and also photography. So I mean everything to do with the magazine and the getting it printed and everything. So I was like fully involved in that. So I always thought I would become a journalist. And after my graduation, in fact, I did post graduation in mass communication only. The public Okay. personnel management I did much later. That I did from Okay. Osmania University. That was in 97. But after my graduation, that was in 1985, I did a course in mass communication and I did my training with the Indian Express Bombay newspaper. And also, I was offered a job in India Today magazine. So I was all set to go on that path, but because my father was in the civil services, he was in the civil service, and he said that why don't you try once, just give the UPSC exam, just give it once, and I mean, if you feel like it, you stay. Otherwise, you become a journalist. So basically, based on my father's advice, I appeared for the first time in the UPSC exam in 1985. That was immediately after my graduation. So, like, I was just 22 at that time, and I gave the prelims. And even though I had not really prepared much, but somehow I was just lucky and I got through. So that first year when I appeared in '85, I got into the Indian Information Service. That was 1986 batch. So again, that service was also related to the media and to mass Mass communication. yeah, but in that service, you have to stay only in Delhi. And because I went from Bombay to Delhi, it was like a culture shock for me. I didn't like Delhi at all. So after that service for 1 year in Delhi, I said, no, I have to appear again in the exam and I have to get into some other service. I can't Service. stay. I somehow the culture of Delhi didn't Like gel with Delhi. me. I was more used to Bombay and the politeness of the people and their very helpful nature. And Delhi में बहुत ज़्यादा लोग मतलब झगड़ा करने के लिए उतारू रहते हैं. तो somehow मतलब Yes. मुझे उतना अच्छा नहीं लगा Delhi में. So then I appeared again. Second time I got into the IPS 87. IPS. Then I went for my police training to Hyderabad. That is how I met my husband because he's also 87 batch IPS. And IPS then I officer. had appeared again, third time. I had already given the exam before going to Hyderabad. Then third time I got into the IS, that was 1988. And then I came to Masuri for our IS training. So all the 3 years I Okay. was just doing training like 86, 87, हाँ. 88. 780. Okay, so like you explained कि obviously you didn't want to live in Delhi, तो आपने दोबारा you gave another attempt. और luckily, like I think आप उन कुछ लोगों में से होंगे जिन्होंने जितनी बार एग्जाम दिया they cracked it because it doesn't happen like with everybody. I've just been So very lucky. This is हाँ. one exam which is like a lottery ticket.
अगर आपका लग गया तो लग Yes. गया. And I think God has been very kind to me. So I've been lucky to get this all the 3 years. Yeah. So, like after you were selected in IPS, तो फिर वो छोड़ने का कोई reason था या you have given the attempt already तो इसलिए and you got हाँ. IS so you chose IS. Yeah, see, basically उसको छोड़ने का main reason ये था कि since my husband was already in the IPS, we discussed and we thought it's better if we are in separate services. It just Yes, makes for a more holistic, family life, and also the IPS would have been probably tougher being a lady in that service. Even though now we have a lot of lady IPS officers also. I think us samay, it was again my father's advice also that beta you join the IS. It'll be a more balanced family life for you. So again we went for that, and I think it has turned out to be good only because we have the Yes. advantage of both our services. Yes. So like obviously ये question तो मैं थोड़ा बाद में पूछने वाली थी, but I'll come to that only. Like you are mentioning your husband. I have talked to him also. तो ये जानना चाहती हूँ like you are an IS officer, he is an IPS. Basically you both are bureaucrats. So इसके क्या perks होते हैं and what are the disadvantages when you are in मतलब holding such a strong positions, important positions, आपकी duty इतनी important है, then you have your family. So being एक ही इंडस्ट्री से like you can call bureaucracy also an industry, तो होने से क्या फायदे हैं and what are the challenges आपके एक्सपीरियंस? सी बेसिकली फायदे तो ये है कि हम लोग एक दूसरे की जॉब को बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि आईएएस आईपीएस दोनों जो है राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं. हम लोगों का सिलेक्शन तो ऑल इंडिया लेवल पे होता है, उसके बाद हम लोगों को एक कार्डर अलॉट होता है. सो बेसिकली क्या है कि हम लोग अपनी एक दूसरे की नौकरी और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि हम लोग दोनों राज्य सरकार के ही साथ काम कर रहे थे. और जैसे पहले उत्तर प्रदेश में थे तो उत्तर प्रदेश में क्या क्या प्रॉब्लम्स थे वो इनका बार बार ट्रांसफर होता रहता था हमारे हस्बैंड का क्योंकि पुलिस उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा ट्रांसफर्स होते हैं. तो मतलब दैट इज समथिंग आई कुड अंडरस्टैंड एंड इवन दो आई यूज्ड टू ट्राई कि जहां इनका ट्रांसफर होता है हम भी रिक्वेस्ट करते थे कि हमको वहीं कर दीजिए, लेकिन कई बार साथ में पोस्टिंग नहीं होती. So that is the disadvantage that sometimes you have to stay separately. So UP में वो problem आया था, 2-3 बार हम लोगों को अलग अलग जिलों में पोस्टिंग हुई थी और फिर वैसे ही मैनेज करना था, एडजस्ट करना था. तो दोनों ही चीजें मैंने बता दी कि बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है अपने पार्टनर के साथ, लेकिन कभी कभी अलग भी रहना पड़ता है. Okay. And now coming to your services, like you served in 2 states, UP and then Uttarakhand under various chief ministers. So Or you actually, might have been. हाँ, Yes. Actually, I wanted to know your best work, like under whom regime you worked the best. Yeah, I'll tell you. See, basically, I worked in 4 states, not 2 states, because my home state is Madhya Pradesh. So originally, when I got into the service, I was allotted MP cadre because I was the topper in my MP batch. And there I was posted in Ujjain for my district training. So I did my district training in Ujjain. तब तक हम लोगों की शादी हो गई. So I applied for a change of cadre from MP to UP because my husband was in police in the UP cadre. So it took 1 year, 1 full year. मतलब शादी के बाद 1 साल तक हम MP में थे, ये UP में थे. 1 साल लगा पूरा प्रोसेस में. I got posted to Bareilly. That was where he was posted, and then we were together in 1990. तो फिर उसके बाद यूपी में काम किया. Then my husband went on a deputation to the National Police Academy that is in Hyderabad. So because I also wanted to be with the family, with him and with my daughter there. So first for 2 years I took leave. I took study leave. That is the time when I did MA in Public Personnel Management from Osmania University, Hyderabad. And then after that, I got a posting to the Andhra Pradesh government for 2 years. So I stayed there at the state level as joint secretary. And then in 2000, then we came back to UP in 99.
And in 2000, this new state of Uttarakhand was created out of UP. UP को ही carve करके एक नया प्रदेश Uttarakhand, and my husband belongs to this place. He's basically from Mussoorie, which is part of district Dehradun only. तो क्योंकि वो यहाँ के थे तो डोमिसाइल पॉलिसी में उनको उत्तराखंड कार्डर मिल गया और हम लोगों ने अपने ऑप्शंस भी दिए थे दैट वी वांट टू कम टू उत्तराखंड एंड बिकॉज देयर वाज अ कपल पॉलिसी कि अगर सीनियर कपल यहाँ आएगा तो his spouse will also come automatically to this cadre. So that cadre change was very smooth. ज़्यादा time नहीं लगा. And after the state's creation in 2000, we both came to Uttarakhand. So you asked me about my best posting. So I would say two of my postings have been very satisfying. Basically, it depends on the kind of work that you are able to do in a particular posting. So in my district, I have done 3 district postings, one in Uttar Pradesh, that was in Fatehpur. Fatehpur district, I did something for the disabled welfare. Like वहाँ के जितने भी दिव्यांग जन थे जिनको पहले विकलांग बोलते थे अब दिव्यांग शब्द यूज होता है डिस्ट्रिक्ट में जितने भी दिव्यांग जन थे उनका I made a project for them and within a period of 9 months I got a survey done. हर गांव में जो वहाँ के जो पटवारी और लेखपाल होते थे उनके माध्यम से हर गांव में एक सर्वे कराया कि इस गांव में कितने लोग ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं और उनको किस चीज की आवश्यकता है. अगर उनको ट्राईसाइकिल चाहिए या व्हीलचेयर या बैसाखी या हियरिंग एड या अगर ब्लाइंड है उनको टेप रिकॉर्डर चाहिए, जिस भी चीज की आवश्यकता है वो सारा हम लोगों ने डेटा कलेक्ट कर लिया. उसके बाद एक एलिम्को संस्थान है जो भारत सरकार का एक संस्थान है कानपुर में. वो लोग आर्टिफिशियल लिम्स और असिस्टिव डिवाइसेस बनाते हैं दिव्यांगों के लिए. उनके साथ हम लोगों ने बात करी तो उन्होंने कहा कि आपका इतना डिटेल डेटा है तो हम आपके कैंप्स को स्पॉन्सर कर देंगे. तो हम लोगों को राज्य सरकार से कोई बजट की आवश्यकता नहीं हुई. एलिम्को ने हमारे सारे कैंप्स स्पॉन्सर किए. उसके बाद हम लोगों ने हर ब्लॉक, वहां पे 15 ब्लॉक थे जो डेवलपमेंट ब्लॉक्स होते हैं विकास खंड फतेहपुर में, वहां पे हम लोगों ने एक मेजरमेंट कैंप लगवाए जहाँ पे एलिम्को की पूरी टीम आई और डॉक्टर्स भी आए सब कुछ. और जितने भी दिव्यांगजन थे जैसे उस गांव उस ब्लॉक के जितने गांव थे उन लोगों को हम लोगों ने हेल्प किया. अपनी पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को लगा के हम लोग उनको वहां लाए और वहां उनके मेजरमेंट्स हुए. तो एक ही दिन में मतलब सारे ब्लॉक्स में मेजरमेंट कैंप्स हो गए, अलग अलग टीम्स गई उसमें. और उसके बाद हम लोगों ने 3 तहसीलें थी, 3 तहसीलों में अलग अलग दिन में डिस्ट्रीब्यूशन कैंप्स लगवाए. वहां पे जिस भी चीज की उनको आवश्यकता थी उनको दिया गया और उनको ट्रेनिंग भी दी गई. पीरियड ऑफ 9 months we covered almost 5,000 disabled people without any cost to the state government. तो आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद दिस वर्क एंड वहां पे जो जितने भी डिसेबल्ड लोग थे दे वर वेरी वेरी हैप्पी विद दिस वर्क. इनफैक्ट जब मेरा फतेहपुर से ट्रांसफर हुआ बैक टू लखनऊ दे वर लाइक सो अनहैप्पी कि जब हम अपनी गाड़ी निकाल के जा रहे थे वो सब लोग आके उन्होंने घेराव कर लिया. वो बोले कि नहीं, और गाड़ी के सामने लेट गए कि हम तो आपको जाने ही नहीं देंगे. फिर हमने उनको बहुत प्यार से समझाया. हमने हमारा परिवार लखनऊ में है, हमारे हस्बैंड बेटी वहां है तो हमें आप जाने दीजिए और वहां पे भी हम अच्छा काम करेंगे, आप ही लोगों के लिए काम करेंगे. तो फाइनली वो लोग कन्विंस हुए, उन्होंने जाने दिया. लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस था और बहुत एप्रिसिएशन उन लोगों का मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके जीवन स्तर को सुधारने में मेरा कुछ योगदान उस डिस्ट्रिक्ट में हो गया. एंड विद इन अ पर्टिकुलर टाइम आई ऑर्गेनाइज्ड इट इन सच अ वे कि सब लोग कवर्ड हो गए. मतलब फतेहपुर का कोई भी दिव्यांग छूटा नहीं था. वी कुड से दैट. एंड राज्य सरकार ने भी इसके लिए एक एप्रिसिएशन हमको दिया. फिर विश्व विकलांग दिवस पे वहां के जो उस समय के गवर्नर थे उन्होंने इनवाइट करके एक सर्टिफिकेट भी दिया और इसकी बहुत एप्रिसिएशन यूपी की तत्कालीन राज्य सरकार में हुई थी. As far as the other project that I'm very happy about, that was in district Tigri Garhwal in Uttarakhand. That was my first posting जब उत्तराखंड बना. टिहरी गढ़वाल में एक टिहरी डैम बन रहा था जिसका कंस्ट्रक्शन 1979 में शुरू हो गया था, लेकिन विभिन्न कारणों से वो डैम का कंस्ट्रक्शन डिले होता जा रहा था. तो ड्यूरिंग माय टेन्योर I had very close interaction with all the people who would be displaced by the dam.
और उनकी जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी थी उसमें उनकी कुछ शिकायतें थी उसको लेते हुए। तो हम लोगों ने बैठ के बहुत सारी मीटिंग्स करके उनकी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी को थोड़ा बेटर करवाया, जिससे वो लोग संतुष्ट हो गए, उनको थोड़ा बेहतर रिहैब का जो पैकेज मिल रहा था वो बेटर हुआ। और उसके बाद वहां पे 2 टनल्स बंद कराने थे, T3 और T4, और T3 T4 टनल बंद करने के बाद ही डैम का आगे का कंस्ट्रक्शन हो सकता था। तो उनको डैम अथॉरिटीज के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो टनल्स बंद हो जाए। तो वो टनल्स फिर हम लोगों ने बंद करवाए। उस समय थोड़ा बहुत विरोध भी हुआ, लेकिन क्योंकि हम लोगों का एक अच्छा वो बन गया था, वहाँ के जो विस्थापित कम्युनिटी थी जिनके गांव डिस्प्लेस हो रहे थे और जो डूब क्षेत्र में आ रहे थे, उनसे निरंतर संवाद होता रहता था। तो वो लोग भी फाइनली संतुष्ट हो गए कि उनके हित में हम लोग काम कर रहे हैं। और फाइनली जो ये टिहरी डैम बना और अब इससे लगभग 1400 मेगावाट बिजली मिल रही है राज्य सरकार की। तो इसका क्रेडिट उस एक्शन को जाता है जो मेरे कार्यकाल में लिया गया। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत अच्छा काम था जिसके बारे में मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन है। ट्रू ट्रू। और अभी तो टिहरी डैम आई थिंक टूरिस्ट का के लिए भी बहुत बड़ा अट्रैक्शन बना हुआ है, लाइक पीपल स्पेसिफिकली फ्रॉम फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली, वो थोड़ा उनका वीकेंड गेट अवे है और बाकी लोग भी जाते हैं। सबसे बड़ी लेक है वो, एशिया की सबसे बड़ी लेक बन गई है। जो डैम बनने से जो क्षेत्र में पानी भरा, डूब क्षेत्र में, वो बहुत ही सुंदर लेक है। और मैं तो सभी को, आप लोगों को, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबको इनवाइट करूंगी कि टिहरी आके वो लेक जरूर देखें, बहुत सुंदर जगह। यस यस। और अभी जैसे आप बता रहे थे एंड यू वर टॉकिंग अबाउट वो पूरा योर एक्सपीरियंस इन फतेहपुर, एंड आई थिंक ऑब्वियसली जो कोई भी सिविल सर्वेंट हो, दे जॉइन for this purpose only, you know, to give satisfaction to people, to bring on smile. This happened, but obviously bureaucracy and civil services comes with lots of challenges also, like over the period of time you have to deal things जो आपने नहीं सोची होगी. So any that experience any experience which has been the most challenging one till date for any reason, personal, professional, any reason? See, personal way में तो being posted in Tigri was personally very difficult for me because my husband and my 2 daughters, I have 2 daughters, they were both in Dehradun. And because बच्चों का, क्योंकि I knew कि जो टिहरी की पोस्टिंग है वो बहुत लंबी नहीं रहेगी, क्योंकि ultimately Dehradun is the state capital. So after a certain level of seniority, we all have to get posted to the state capital. So I come back from Tigri, and the schooling in Dehradun was very good. So we put both our daughters in school in Dehradun, and I had to leave them and go to Tigri. But उस समय my elder daughter was 9.5 years old. She was okay, मतलब she could manage everything. My younger daughter was only 4 years old, Shivani. Oh. So I had to leave her and go to Tigri. So that was personally very painful for me. Even though my daughter says कि नहीं मुझे कोई problem नहीं, they were both very supportive, and they said कि नहीं आप जाओ, you should never think of leaving your job for us, and we are very proud of your work. But she was only 4 years old. So I felt bad. I felt that as a mother, I have left a 4-year-old child, and I'm, going to a different place. And maybe once in 15 days, they used to come and meet me, or I used to come to meet them. 3 घंटे का difference था. But still, हर समय वहाँ पे रहना possible नहीं. And but my husband looked after them very well, like a mother. He did everything for them. उनको नहलाना, उनको खाना खिलाना, जो मतलब एक माँ का पूरा रोल उन्होंने 1.5 साल तक निभाया उनके साथ. So that was very nice. In fact, he says that was the best time of his life because he got so children, and मतलब इतना बच्चों का प्यार उनको मिला, उन्होंने इतना बच्चों को प्यार दिया, तो वो हमेशा याद करते हैं उस चीज को. लेकिन मुझे थोड़ा दुख जरूर हुआ छोटी बच्ची को छोड़ के जाने में. लेकिन उसके बाद से तो फिर बच्चे हमारे साथ ही रहे. उसके बाद ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. बाकी जो आपने प्रोफेशनल चैलेंजेस के बारे में पूछा है, तो when I was posted as Chief Electoral Officer of Uttarakhand, for 10 years I occupied this post. तो 10 years में बहुत सारे चुनाव हमने करवाए यहाँ पे, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव.
इसमें कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन इलेक्शन कराने का प्रोसेस इटसेल्फ इज वेरी चैलेंजिंग. Very challenging. True. Very challenging, and you have to maintain complete neutrality. मतलब क्योंकि सभी पार्टीज को लगना चाहिए कि आप बिल्कुल निष्पक्ष हैं और एकदम निष्पक्ष तरीके से चुनाव कंडक्ट किया जा रहा है. और हम लोगों का क्योंकि छोटा स्टेट है, तो हम लोगों को इलेक्शन के साथ साथ और डिपार्टमेंट्स का चार्ज भी दे दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट में, यहाँ पे कम ऑफिसर्स रहते हैं. तो आपको एक बहुत फाइन लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है कि आप राज्य सरकार में भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, तो आपको राज्य सरकार से भी एक दूरी बना के रखनी है. तो वो काफी चैलेंजिंग था, लेकिन फिर भी मैंने 10 साल उसको बहुत अच्छे से निभाया. और इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने भी मुझे एक अवार्ड दिया था फॉर माय पीरियड एज सीईओ, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट. Okay. So now, like, you are additional chief secretary. I think you must be currently one of the few women serving on the top position in bureaucracy. और बहुत सारे लोगों, especially लड़कियों के लिए, you must be an inspiration. And so, how does it feel? Like आप मिलते होगे लोगों से, लड़कियों से और भी लोगों से, तो कैसा रहता है? कभी आपको ऐसे सुनने मिला कि yes, you have changed someone's life? Yeah, no, that is a very nice question you asked, because a lot of people have told me that, and especially young girls, they often come to meet me because they want advice कि हम क्या career join करें. And I really like to, advise girls about their career, because I think if we have to move towards a better society, a more just society, then we have to get more women in the workplace. इनफैक्ट आप तो यू आर अ जर्नलिस्ट, आप फिगर्स देखती होंगी कि इंडिया हैज वन ऑफ द लोएस्ट workforce participation of women in the world. In fact, our neighboring countries, Sri Lanka and Bangladesh, have more women in the workplace. So I think that is something all of us need to combine and make an effort that more women should come out into the workplace. उससे हमारी GSDP में भी बहुत growth होगी. So if girls come to me and ask for advice, I'm always very happy, and I would always request them to come into the civil services, because this is one way that you can really help people through our job. You can help a lot of people, and in fact, I have made it an aim that any girl who is poor and who wants to study, if she comes to me, then I try to help them financially also. मेरी सैलरी में जो कुछ होता है मैं उससे भी देती रहती हूँ थोड़ा बहुत लड़कियों की पढ़ाई के लिए. लेकिन apart from that, then I get in touch with corporate entities, because they have a corporate social responsibility fund. So बहुत सारी हम लोगों की प्राइवेट कंपनीज भी ऐसी हैं जो CSR में लड़कियों की पढ़ाई के लिए देना चाहते हैं पैसा, तो हम उनको उन लोगों से जोड़ देते हैं. लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसी भी लड़की की पढ़ाई पैसे ना होने के कारण से ना छूटे. और इस तरह से बहुत सारी लड़कियां हमारे पास आई हैं, और उनको बहुत सारे डोनर्स ने हेल्प किया है. मैं उन सब डोनर्स को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने बहुत जेनरसली गर्ल्स की एजुकेशन के लिए कंट्रीब्यूट किया है. एंड आई थिंक इट इज लाइक द होल सोसाइटी हैज टू कम टुगेदर टू सी दैट आवर गर्ल्स स्टडी. और जैसा प्रधानमंत्री जी का एक कॉल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसको हम लोग लिटरली बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब बेटियां पढ़ेंगी और बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी हमारा समाज आगे जाए. Yes, true. So, like we are talking about women representation. अभी 26 अगस्त को it was Women Equality Day, and we did a story also about that, focused on bureaucracy only. तो अगर bureaucracy की बात करें तो वहाँ पे भी like 70 more than 70 years of independence, और अभी भी representation बहुत कम है. Like it's in 10% in IPS, 13% in IS, and सारे services में across the services is the same. So I want to ask, like, एक तो reason which I understand कि obviously पूरी एक है hierarchy, ऐसा system चला आ रहा है कि obviously when girls will be denied education, तो how will they pursue bureaucracy as a career? तो एक तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां attempt नहीं देती हैं, तो obviously ज़्यादा select नहीं होगी. तो लेकिन इसको change कैसे किया जा सकता है so that more and more women come to bureaucracy? Because
टॉप सर्विस है, यहाँ से बदलाव ग्राउंड लेवल तक जा सकता है. तो वी नीड टू काइंड ऑफ, obviously not 50-50%, but a significant number we need. So how can that be, how can it be managed? Pallavi, actually you have asked a very good and very deep question. So basically if you see the figures, क्योंकि I have been earlier in the higher education and technical education departments, even though they are not with me now, but earlier I was in those departments. तो हम लोगों ने ये देखा कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो हमारे सरकारी डिग्री कॉलेजेस हैं वहां पे 65% लड़कियां पढ़ रही एंड ओनली 35% ऑफ दोज आर बॉयज. तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां हायर एजुकेशन में नहीं जा रही, लेकिन होता क्या है, हम लोगों का जो समाज है, विशेष रूप से भारत का जो समाज है, यहाँ पे जो एक पेट्रियार्कल माइंडसेट है, पितृसत्तात्मक सोच जो है, वो सोच सबके मध्य में है. मतलब हमारे मध्य में भी पेट्रियार्कल सोच है, क्योंकि हम लोग भी उसी सोसाइटी से निकले हैं. जो लड़कियां हैं वो भी वैसे ही सोचती हैं, उनके माता पिता भी वैसे ही सोचते हैं. तो लड़कियों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कहाँ से शुरू होता है? वो जन्म के पहले से ही शुरू हो जाता है. बहुत से लोग ऐसे हैं इस देश में जो लड़की को जन्म ही नहीं देना चाहते. और सबसे दुखद बात तो ये है कि जो माँ है, जो स्वयं एक बेटी है, जो आज हम माँ है, तो हम भी किसी की बेटी थी, लेकिन वो माएं भी इतनी ज्यादा सोसाइटी से टेरराइज हो जाती हैं कि जिस समय कोई माता गर्भवती होती है, वो हर समय ये प्रार्थना करती रहती है कि ईश्वर मुझे एक पुत्र दे. She gets a boy. That she gets. She keeps on praying. There are so many, pujas, and if you listen to our folk songs, इतने सारे भजन हैं जहाँ पे हम ईश्वर से मांगते हैं कि माता मुझे एक पुत्र दे दो. तो मतलब इतनी दुख की बात है ये, जब किसी बेटे का जन्म होता है तो इतनी खुशी मनाई जाती है. हमने बहुत सारे परिवारों में ये देखा कि बेटा और बेटी के बीच में, मतलब पहले तो बेटी को पैदा ही नहीं होने देना है. अगर बड़ी मुश्किल से बेटी किसी तरह से इस दुनिया में आ गई, कुछ बहादुर माएं होती हैं जो बेटियों को जन्म भी देती हैं. तो उसके बाद जन्म के साथ ही उसके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है. मैं एक और आपको उदाहरण देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत इसने हिला दिया था. जब मैं उत्तर प्रदेश में थी तो मैं स्वास्थ्य विभाग के एक प्रोजेक्ट में काम कर रही थी जिसका नाम था सिफ्सा की एक ट्रेनिंग हम लोग करा रहे थे. तो उसमें दाइयों की ट्रेनिंग हो रही थी. तो हम लोगों ने दाइयों से पूछा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद आप क्या करते हैं. तो दाई, जो ट्रेडिशनल दाई होती है, जो जन्म देती है, मतलब बच्चों के जन्म में हेल्प करती है गांव में, तो उस दाई ने कहा कि अगर बेटा पैदा होता है तो हम उसको गुनगुने पानी से नहलाते हैं, अगर बेटी पैदा होती है तो उसको हम ठंडे पानी से नहलाते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि बेटी पैदा हो रही है, जो वूम से निकल के बेटी आती है, वूम इज अ वेरी वार्म प्लेस. वहां से जो बच्चा, जो न्यूबॉर्न बेबी जन्म ले रहा है, अगर उसको आप ठंडे पानी से नहला देंगे तो वहीं उसकी डेथ हो जाएगी. तो इसका मतलब अटेम्प्ट ये रहता है कि बेटी का जन्म हो गया, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि किसी तरह से वो आगे जन्म न ले पाए. उसके बाद भी कुछ बच्चियां बच जाती हैं और ठीक है, वो मतलब दे डू ग्रो अप. उसके बाद उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसे शुरू होता है, जब बच्चों को स्कूल भेजा जाता है. ये हमने कई गांव में, उत्तराखंड में भी और यूपी में भी देखा. तो आजकल बहुत सारे गांव में एक प्राइवेट स्कूल भी खुल गए हैं, या जैसे सरस्वती शिशु मंदिर खुल जाते हैं, वो भी प्राइवेट होते हैं. तो जो बेटी होती है उसको सरकारी स्कूल में भेजा जाता है, जो बेटा होता है उसको प्राइवेट स्कूल या शिशु मंदिर में, क्योंकि वहां फीस लगती है. तो बेटे के लिए वो माता पिता फीस देने के लिए तैयार हैं, बेटी को फ्री एजुकेशन दिलाते हैं. वो ही ऊपर जाके जब हायर एजुकेशन में बेटी जाती है उसको प्राइवेट कॉलेज में भेजते हैं, क्योंकि वहाँ फ्री एजुकेशन है. और लड़के को प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज या मेडिसिन, इंजीनियरिंग, उस तरह के कोर्सेज में भेजते हैं. तो ये मतलब हम लोगों के समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि बेटी को जन्म तो दे रहे हैं लेकिन उसको बराबरी नहीं दे रहे हम लोग. तो जब बेटियों को बराबरी मिलेगी तब और ज्यादा बेटियां हमारी सिविल सर्विसेज में और सारी सर्विसेज में आएंगी. आपने जर्नलिज्म में भी देखा होगा कितनी कम लड़कियां ऊपर पहुंच पाती हैं जर्नलिज्म में, और कितना टफ आपकी लाइफ रहती है. जो फील्ड पे जो जर्नलिस्ट होते हैं, इतना ट्रैवल करना होता है. हम तो यहाँ देखते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार आते हैं, यहाँ पे भी जैसे सीएम ऑफिस में हमें सीएम साहब का इंटरव्यू लेने आते हैं,
उसमें भी 90% वो लड़के होते हैं, बहुत कम लड़कियां आ पाती हैं जो कि कैमरा लेके जा रही हैं, इतना टफ उनकी लाइफ है। तो ये हर क्षेत्र में बराबरी तभी मिलेगी जब हमारे माता पिता की मानसिकता बदलेगी पूरे समाज में, जब हम बेटी को एक एसेट के रूप में देखेंगे, लायबिलिटी के रूप में नहीं। और यस, ये आप सही कह रही हैं, जब और लड़कियां सर्विसेज में आएंगी, हम लोग और लोगों को इंस्पायर करेंगे, आप लोग और लोगों को इंस्पायर करेंगे, तो और बेटियां वर्क प्लेस में आएंगी। जब तक लड़कियां वर्क प्लेस में नहीं आएंगी, उनकी वैल्यू नहीं है कोई। अभी क्या होता है, हमारी जो महिलाएं काम करती हैं, पहाड़ में तो ये समस्या बहुत ज्यादा है, सारा काम महिलाएं करती हैं। गांव में इतनी डिफिकल्ट उनकी लाइफ है, जानवरों के लिए चारा लाना, घास लाना, पानी लाना, चूल्हे में खाना बनाने के लिए लकड़ी लाना, मतलब दे आर लाइक बीस्ट ऑफ बर्डन। वो आप देखेंगे हर समय पीठ पे उठा के कुछ लेके आ रही हैं, और उसके बाद भी उनका जो काम है उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है। वो सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक काम में लगी रहती है, खाना भी उनको बहुत मुश्किल से मिलता है, स्पेशली जो बहू होती है, मतलब उसके साथ तो बहुत ज्यादा अन्याय होता है हमारे गांव में। लेकिन जो काम वो महिला या वो लड़की कर रही है उसका वैल्यूएशन नहीं है। जो हम ऑफिस जा रहे हैं, हमें बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, तो हमारे काम का वैल्यूएशन हो रहा है, लेकिन जो घर में महिलाएं काम करती हैं उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है। इसलिए उसको हम लोग समझते हैं कि ये काम ही नहीं है। कई बार आपने देखा होगा, जब फॉर्म भरने होते हैं किसी को, उसमें लिखा जाता है कि महिलाओं से को जो भरने होते हैं उनको अगर लिखना पड़ता है कि आर यू वर्किंग, सो दे से नो, but they are all working. I have not seen a but they are single. working They are all working, but वो जो घर का काम है, हाउस वर्क, it is not seen as work. That is the sad part. work. Yes, yes. It is like obviously it looks like कि बहुत दिनों बाद मैं किसी ऐसे इंसान से बात कर रही हूँ who is well aware of the ground realities, because बहुत सारे सिचुएशन में ना when you are in metro cities और आप बात कर रहे होते हैं लोगों से, तो they feel कि कहाँ होती है भ्रूण हत्या, where is the discrimination, like they don't know, but everything which we are reading in book सब हो रहा है, everything is in on the ground, और वो statistics में reflect हो रहा है, because but वही है कि मुझे ध्यान नहीं देना है, तो that's why I will just ignore it and मैं वही 2-3 incidents पे focus करूँगी जो मुझे सूट करती है, and I'll say कि women जो है equality का नाजायज फायदा उठा रही है and all, but obviously ground reality is way different than that. So like enough of this, like this is a really serious topic and we can go on this. तो थोड़ा इसके बाद मैं आपके थोड़ा पर्सनल एस्पेक्ट पे आऊँगी, लाइक स्ट्रेसफुल जॉब है, यू पूरा कई बार यू मतलब लाइक पूरे वीक यू माइट नॉट गेट टाइम फॉर योरसेल्फ, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता होगा, तो ऐसे में व्हाट इज़ योर गो टू थिंग फॉर रिलीजिंग स्ट्रेस? आपने यू जस्ट मेंशन कि आप फोटोग्राफी में भी आपको इंटरेस्ट है, एंड आई हैव सीन some videos of you like singing also, like specifically for folk song. So what is your go-to stress buster? See, basically two things or three things you could say. See, one is music, which you have pointed out. I love listening to music, and I think music is a very good way to relieve your stress. Secondly, jogging, running on the treadmill. I do it every day. 10 minutes in the morning, 10 minutes in the evening. Morning का तो regular होता है, evening का कभी कभी skip हो जाता है, और I walk in the evening, क्योंकि शाम का time का कोई fix नहीं रहता, हम लोगों की कई बार meetings late हो जाती हैं. But every morning I make it a point to do my treadmill and to do my exercises. So 20 minutes of workout in the morning. And I think that, makes me feel very happy when I'm on the treadmill along with my music. Those two things are best for busting all kinds of stress. And also, I'm very fond of reading. So I think reading also, gives you a lot of relaxation, and it takes you into a different world. Because if you're reading a novel by somebody or an autobiography, we all, often get very inspirational people when we read about them, like Dalai Lama. I've read a lot about Dalai Lama, so I'm very inspired by his philosophy. And reading also is very relaxing and very stress busting. Yes. So music पे थोड़ा सा और discuss करेंगे. Like I talked to your husband also, Mr. Anil Raturi sir,
and he is also like उन्होंने माना नहीं, but I know for a fact that he is a very good folk singer, and obviously वो थोड़ा पहाड़ी songs he sings. Like you don't belong from Pahad na, like you are not from Uttarakhand. He is. So did he? Yes. So did he taught you the folk songs or like कैसे, क्योंकि I have seen you sing folk songs with him. So ये कैसे हुआ? Basically, see, in my family, my mother also was very fond of singing. My nani also, like, it's come down through the family. And my mother is from Awadh. That is वही जो फतेहपुर हमने आपको डिस्ट्रिक्ट बताया था, वहीं की है माय मदर। उनका जो अवधी फोक सॉन्ग्स है वो भी बहुत रिच है। हमारी नानी जो गाने गाती थी वो भी हम लोग बचपन से सुनते थे, तो वहां से आई गॉट इनटू फोक सॉन्ग्स। एंड उसके बाद we also listen to a lot of other music, like even Hindi film music we are very fond of. Old songs, Lata Mangeshkar, Kishore Kumar, Hemant Kumar, all those. My husband also sings old songs very well also. And then when I came to Uttarakhand, I found that yahan ka folk music is also very beautiful. And because I have a natural love for music, and also because I understand Bengali, because I spent my childhood in Calcutta. So Bengali music is also very rich. And I love Rabindra Sangeet, and we used to sing a lot of Bengali songs. Bengali and Garhwali language is very similar. So because I knew Bengali from my childhood, I can understand Garhwali also. So when I came to got married to my husband, he was a Garhwali. I could understand what he and his mother used to talk in Garhwali because वो Bengali से इतना close था. And then because he is very fond of music, he taught me those Garhwali folk songs also, and so we've been listening and singing, and we just enjoy singing. We have not learned music. None of us have learned music, but because we love listening so much and enjoy listening, and so we sing also just for our own enjoyment. Like I think how many years are left before you retire? I guess not more. 2 years. Yes. So I want to know, like, जैसे आपने editing की हुई है magazines की in your college days, तो obviously writing में you have interest. के बाद singing है, and जितना मुझे पता है that you are also interested in social work. तो post retirement किस फील्ड को परस्यू करोगे? एंड हैव यू प्लान्ड इट, या फिर अभी लग रहा है कि अभी 2 साल दूर है तो आई विल थिंक अबाउट इट लेटर? अभी कुछ प्लान नहीं किया है, बिकॉज लाइक नाउ एज यू हैव सीन, लाइक माय हस्बैंड हैज रिटन अ नॉवेल इन हिंदी. So I was with him throughout. I did all the editing, proofreading. उसको 10 बार पढ़ा, उसके सारे corrections वगैरह किए. So that was a very interesting experience, helping him with his book. So I think he has a lot of books in his mind, and I'm sure I'm going to help him with all his books because I really like doing that kind of work. And maybe I will also think of writing a book because I like writing also. You have had tons of experience. You must write. Yeah, social work, of course. You know, social work has been part of my life right from childhood. Even as a small child, मतलब जब हम स्कूल में थे या कॉलेज में थे, तो जो आसपास के छोटे बच्चे होते थे, अगर किसी को पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम होता था तो वो हमारे पास आ जाते थे, तो हम उनको sort of free tuitions देते रहते थे. In my free time, I was always doing that. So I think I would like to help girls with their education in future also. And also I would like to help women in setting up like small businesses या के जैसे पहाड़ी जो खाद्यान्न है, यहाँ पे जो पहाड़ में जो कोर्स ग्रेन्स वगैरह उगते हैं, जैसे मंडुआ है, मिलेट्स जिसको आप बोलते हैं, और बहुत अच्छी चीजें उगती हैं, लेकिन उनको अच्छा मार्केट नहीं मिलता. तो it's there in my mind, अभी बहुत ज्यादा clearly chalk out नहीं हुआ है, but in some way I would like to take those women's product to the market. If I can, you know, create a sort of organization for them, then I would like to do something like that. And definitely girls education, and girls maybe I want to focus on orphan children. जो हम लोगों के अनाथ आश्रम हैं, वहाँ पे like I've sort of adopted the girls there. उनको भी हम help करते रहते हैं, so that वहां से, क्योंकि 18 साल के बाद जो अनाथ आश्रम है उनके रूल्स हैं कि 18 साल के बाद लड़की वहां नहीं रह सकती. तो यहाँ पे क्या करते थे, पहले वो लोग 18 साल की जब लड़की हो जाती थी तो उसकी शादी कर देते. और मैंने देखा कि 3-4 लड़कियों की वहां पे शादी कराई गई, और
उसके बाद वो लोग और परेशान हो गए, क्योंकि उनकी शादियां जहां भी होती थी वो बहुत ही गरीब लड़के होते थे, उनकी कोई नौकरी नहीं होती थी। तो शादी होने के बाद वो और ज्यादा एक तरह से भूखमरी के कगार पे पहुंच जाती थी लड़कियां। एटलीस्ट अनाथ आश्रम में उनको खाना वाना अच्छा मिल जाता। तो फिर हम उस समय इस डिपार्टमेंट का चार्ज मेरे पास आया, तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सो आई मेड अ पॉलिसी कि किसी भी लड़की की आप शादी नहीं करेंगे, यू विल सेंड हर टू हायर एजुकेशन। कहीं ना कहीं उसकी शिक्षा दिला के फिर उसको किसी जॉब में जोड़िए, फिर वो अपने मन से शादी करे, उसकी जबरदस्ती शादी नहीं करनी चाहिए। दैट्स वेरी अनफेयर। You cannot So force. now they are doing that. So a lot of girls have now started studying after 12th, and some of them have got jobs also. So this is something I want to focus on even after retirement, because I think those girls really need help. Need. Yes, yes. True. Okay. So lastly, थोड़ा एक I would like you to give a message जो भी young budding aspirants हैं for UPSC और career wise across the field, उनके लिए कुछ दो, अगर आप कुछ मैसेज दे सकते हैं। जो भी हमारे यंग एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग सिविल सेवा में आना चाहते हैं या अन्य नौकरियों में आना चाहते हैं, जहां भी आपको कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देना है, स्पेशली अगर यूपीएससी की बात करें, तो इसमें एक तो आपको ऐसा विषय चुनना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में ज्यादा लोग निकलते हैं तो हम भी ये सब्जेक्ट लें। तो जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उसमें आप अपना बेस्ट कर पाएंगे। तो सब्जेक्ट चॉइस शुड बी अकॉर्डिंग टू योर ओन लाइकिंग। एंड दूसरा, मतलब स्कूल लेवल से ही आपका थोड़ा जनरल अवेयरनेस अच्छा होना चाहिए। यू शुड बी रेगुलर विद न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, नोइंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, मतलब आपके देश में, दुनिया में क्या घटनाएं हो रही हैं, उसका अवेयरनेस अगर आपको रहेगा तो आपका जनरल स्टडीज का, जनरल नॉलेज का बेटर तैयारी होगी और आपको एक बेटर चांस मिलेगा सर्विसेज में आने का। तीसरी बात, आपको लिखने की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आजकल के बच्चों का ये हो गया है प्रॉब्लम कि सारी चीजें डिजिटल हो गई हैं, तो बच्चे बहुत कम लिखते हैं, उनको लिखने का मौका ही नहीं मिलता है। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी बच्चों से है कि आप हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करें। जब भी आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो प्लीज राइट योर नोट्स विद योर ओन राइटिंग। हाथ से लिखने से आपको लिखने की प्रैक्टिस आती है, वो आगे आपको हेल्प करेगी। और दूसरी एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि आई थिंक आपका चैनल काफी पॉपुलर है, बहुत लोग देखते होंगे। जो लोग सिविल सर्विस में आ जाते हैं, जो यंग ऑफिसर्स हैं, उनके लिए भी मेरी एक एडवाइस है। क्या होता है कि जब लोग सिविल सर्विस में आ जाते हैं तो वो ये सोचने लगते हैं कि हम कुछ सुपीरियर हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हम सब इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। जो सड़क पे ठेला लेके सब्जी बेच रहा है वो भी इंसान है। हम सब लोग बराबर हैं। हम सबका इस प्रजातंत्र में एक वोट है। तो कोई भी सुपीरियर और इंफीरियर नहीं है। तो ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और ईगो जो लोगों में आ जाता है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वजह से क्या होता है कि हमारी सर्विस के लोग बहुत अनपॉपुलर हो जाते हैं और लोग उनसे दूरी बना के रखते हैं। लोग आना नहीं चाहते हैं लोगों के ऑफिसेज में। लोग इतना सोचते हैं कि हमें तो डांट के भगा दिया जाएगा, हमारी बात तो सुनी नहीं जाएगी। तो जो विनम्रता है, आपके व्यवहार की विनम्रता, ये हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल होंगे किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली सिविल सर्विस बट एनी फील्ड ऑफ लाइफ। Yes, true. So, like those are really wise words. Obviously, आप किसी भी position पे पहुंच जाए, you shouldn't lose your humility, and because obviously that's यही हम gain करते हैं अपनी life से. Life is all about being ये calm, posed and थोड़ा विनम्र. So it was really nice interacting with you, ma'am. Thank you, Pallavi. बहुत अच्छा session था ये मेरे लिए भी. Nice to meet you also, and you asked very good questions, and I wish you all the best for your channel and for your future career as a journalist. Thank you, Pallavi. Thank you so much, ma'am.